Hello students, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So after so long, today we will start with our subject Environmental Studies or EVS. So I am your teacher Miss Pooja here to make you teach or learn some of the topics in EVS. So without wasting time, let's start. So today we will start with our chapter 4, Food Preparation and Preservation. So in this chapter we will learn about that how we prepare the food and how we preserve it. Preservation means that how we protect our food, right? So let's continue. First of all, what is food? Food is the basic need of our life. Every living beings need food to live. After air and water, the third most important thing we need to live is food. Without food we can't live. So food is really important for us just because food gives us energy to do our daily life routine, right? So let's start our reading. Food is our basic need. We cannot live without it. We eat different kinds of food items in different seasons. The food helps us in growing and developing our body. फूड हम लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो फूड हमारी बॉडी में जाके क्या हेल्प करता है? हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करता है, राइट? सो इट गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. फूड्स गिव्स अस एनर्जी टू डू आवर डेली लाइफ वर्क और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. It keeps our body healthy and strong. When we eat the healthy food, it keeps our body healthy, fit and fine. The food we eat contains different kinds of substances. Substances means the material or the thing which are known as nutrients. So every food items contain substances which are कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो हेल्दी फूड होता है उसमें सब्सटेंस पाए जाते हैं, मटेरियल पाया जाता है एक प्रकार का, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. सो लेट्स नो अबाउट दैम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच इज़ फाउंड इन फूड, राइट? सो लेट्स लर्न सम मोर अबाउट न्यूट्रिएंट्स. So our first nutrient is proteins. Proteins are body building food. See, there are different types of food. For example, body building food, energy giving food and protective foods. So in different types of food, different types of nutrients are present. So body building food में कौन सा nutrient present होता है? Proteins. So let's learn about protein. Proteins are the body building food. Body building food means those food which helps in our body growth, or we can say the physical growth of our body, right? जो हमारी body की growth में help करते हैं वो body building food होते हैं. और body building foods में कौन सा nutrient पाया जाता है? Proteins. So proteins are the body building food which help in our physical growth. They are needed in repairing the damaged part of the body. See, proteins किस में हेल्प करते हैं? हमारे बॉडी के जो डैमेज पार्ट हो जाते हैं उसको रिपेयर करने में, उसको ठीक करने में. जैसे आप खेलते हैं, आपको चोट लग जाती है तो वो चोट अपने आप ठीक हो जाती है. वो किस लिए ठीक हो जाती है? जस्ट बिकॉज इफ़ वी टेक द बॉडी बिल्डिंग फूड देन प्रोटीन्स हेल्प्स अस इन रिपेयरिंग आवर डैमेज पार्ट, राइट? सो इसलिए ही कहते हैं कि दूध पीना चाहिए, जस्ट बिकॉज मिल्क इज़ द बॉडी बिल्डिंग फूड, राइट? जो बच्चे मिल्क इनटेक नहीं करते हैं वो ज़रूर करें, जस्ट बिकॉज इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, राइट? सो कंटिन्यू. चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स दैन एडल्ट्स एज दे कीप ऑन ग्रोइंग ऑल द टाइम्स. बच्चों को प्रोटीन्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है. वाई? जस्ट बिकॉज
उनकी ग्रोथ हो रही होती है, दैट्स वाई दे नीड द बॉडी बिल्डिंग फूड। अगर वो बॉडी बिल्डिंग फूड लेंगे तो उनकी फिज़िकल ग्रोथ बहुत अच्छे से होएगी, बॉडी डेवलप करेगी, राइट। सो कौन कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं? चीज़, एग्स, फिश, मीट, मिल्क एंड पल्सेस आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस किस में पाया जाता है? चीज़ में, एग्स में, फ़िश में, मीट में, मिल्क में एंड पल्सेस। पल्सेस क्या होती है? हमारी जितनी भी दालें होती हैं वो हमारी पल्सेस में आती हैं। आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। इन सब के अंदर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सो वी शुड हैव टू टेक ऑल दीज बॉडी बिल्डिंग फूड फॉर आवर फिजिकल ग्रोथ, राइट। So proteins are the body building food which helps in our physical growth. It repairs our body damaged part. और प्रोटीन्स कौन से फूड्स में मिलता है? चीज़, एग्स, फिश, मीट एंड मिल्क एंड पल्सेस, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिफरेंट न्यूट्रिएंट विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फूड में मिलता है? एनर्जी गिविंग फूड में। एनर्जी गिविंग फूड हमारे कौन से फूड होते हैं? दोज फूड विच गिव्स अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देते हैं हमारे डेली रूटीन के वर्क के लिए, राइट। सो स्टार्च, शुगर एंड ग्लूकोज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में मिलता है? स्टार्च में। स्टार्च फूड कौन से होते हैं? जैसे राइस, पोटैटोज़, इन सब में स्टार्च पाया जाता है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है एज ए न्यूट्रिएंट। सो स्टार्च, शुगर, ग्लूकोज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी टू डू डिफरेंट वर्क्स। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। जो लोग फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, जस्ट बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू डू वर्क, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन एनर्जी गिविंग फूड एंड वी हैव टू टेक कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी। सो एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं? एप्पल, बनाना, ब्रेड, केक, राइस, व्हीट, ज्वार, मेज मीन्स मक्का, कौन होता है, पोटैटो एंड शुगर आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इन सब में पाया जाता है। एप्पल, बनाना, ब्रेड, केक, राइस। सो वी नीड एनर्जी, देन वी हैव टू टेक एनर्जी गिविंग फूड। और एनर्जी गिविंग फूड में हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। एंड बॉडी बिल्डिंग फूड में हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है? प्रोटीन्स। सो यू ऑल्सो हैव टू नो डैट एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं। जैसे हमें एग्जांपल दे रखे हैं एप्पल, बनाना, ब्रेड, केक, राइस। एंड बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? चीज़, एग्स, फिश, मीट, मिल्क। ओके, सो लेट्स लर्न मोर अबाउट these nutrients. Now our third nutrient is fats. So fats are also energy giving food. Fats कौन से food में मिलते हैं? Energy giving food में मिलते हैं. So fats are also energy giving food. They gives us energy as well as heat. कार्बोहाइड्रेट्स भी कौन से फूड में होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड में। और फैट भी कौन से फूड में होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड में। एंड फैट्स गिव्स अस एनर्जी एज वेल एज हीट। फैट हमारी बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प करते हैं। इनटेक ऑफ फैट्स इन एक्सेस इज़ हार्मफुल फॉर अस एज एक्स्ट्रा फैट आर स्टोर्ड इन द बॉडी विच आर टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। सी, फैट्स की मात्रा अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब एनर्जी गिविंग फूड ज़्यादा मात्रा में अगर हम कंज्यूम करते हैं जिसमें फ़ैट एज ए न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, वो वाली फूड अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, राइट। सो दस फैट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी और मोटापा। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। अगर फ़ैट इंटेक हम ज़्यादा करते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं।
लाइक जंक फूड कंटेन्स लोट्स ऑफ फैट। जंक फूड जो हम बाहर का फूड खाते हैं उसमें फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं, उनको ओबेसिटी हो जाती है। दे कैन कॉज हार्ट एलिमेंट्स। हार्ट एलिमेंट्स मीन्स डिसीजेज़। अगर फ़ैट इंटेक ज़्यादा करेंगे हमें मोटापा हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, तो हार्ट डिसीज़ का भी रिस्क बढ़ जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। एलिमेंट्स मीन्स डिसीजेज़। डायबिटीज़ भी हो सकती हैं अगर फ़ैट इंटेक ज़्यादा होगा तो। सो फैट कैन कॉज हार्ट डिसीजेज़ और डायबिटीज़ और ओबेसिटी और देयर आर मैनी अदर डिसीजेज़। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग फ़ैट इन आवर डाइट। हमें फ़ैट लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें फ़ैट नहीं लेना चाहिए, बट हमें उसी क्वांटिटी में लेना चाहिए जिस क्वांटिटी में वो हमारी बॉडी को सूट करे और पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले हमारी बॉडी पे, हार्मफुल इम्पैक्ट ना डाले। सो फैट किस किस में पाया जाता है, कौन से फूड में पाया जाता है? जैसे बटर, घी, क्रीम, ऑयल, नट्स, मीट आर रिच इन फैट्स। बटर, घी, क्रीम, ऑयल, इन सब में फ़ैट की मात्रा पाई जाती है एंड इन सबको हमें खाना चाहिए, बट उतनी ही क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी हमारी बॉडी को सूट करे और जितनी क्वांटिटी हमारी बॉडी पे सही इम्पैक्ट डाले, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, राइट? सो दिस इज़ अवर थर्ड न्यूट्रिएंट फैट्स विच इज़ ऑल्सो द एनर्जी गिविंग फूड। और एनर्जी गिविंग फूड में फ़ैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एज वेल एज हीट प्रोवाइड करता है, बट द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फैट कैन हार्म आवर बॉडी। और कौन कौन सी डिसीज़ेज़ हो सकती हैं? इट कैन कॉज हार्ट एलिमेंट्स मीन डिसीज़ेज़, डायबिटीज़, ओबेसिटी एक्सेट्रा, राइट? एंड फैट्स किस किस में पाया जाता है? बटर, घी, क्रीम, ऑयल्स, नट्स एंड मीट आर रिच इन फैट्स। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. There is a factoid also. 1 gram of fat gives us 9 calories. Calories means a unit of energy, means quantity or the unit of energy. जो एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है डिफरेंट न्यूट्रिएंट से, डिफरेंट फूड से, उसको कैलोरीज में हम काउंट करते हैं। तो कैलोरीज इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स अस 9 कैलोरीज। अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं, 1 ग्राम हम ऐसा फूड खाते हैं जिसके अंदर 1 ग्राम फैट है, सो हमें 9 कैलोरीज प्रोवाइड हुई है, मीन्स हमें 9 यूनिट्स ऑफ एनर्जी मिली है हमारी बॉडी को। वाइल 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस ओनली 4 कैलोरीज। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड इनटेक करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है? 4 कैलोरीज की, मीन्स 4 यूनिट ऑफ एनर्जी। सो कैलोरीज इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स अस 9 unit of energy, or we can say 9 calories, and 1 gram of carbohydrates gives us 4 unit of energy, or we can say 4 calories. So this is enough for today. Now what you have to do, you have to read this chapter till this topic. And today what we learn about that what is food, what are its important कि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, राइट? वी ऑल्सो लर्न अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड में पाए जाते हैं। And we learn about the 3 nutrients also: proteins, carbohydrates and fat. Proteins are the bodybuilding food, carbohydrates and fats are the energy giving food, right? See, ये जितने भी words मैंने underline करे हैं, I already told their meanings, and what you have to do, you have to write down these words in your EVS notebook with their meaning. So thank you, take care, stay safe, stay healthy.